Assalamu alaikum everyone, this is Abahat and I'm here, and it's a beautiful chilly evening, and it just rained as well. So now first let me check out who is online so I can just start with my session, and in the meantime I want all of you to analyze this caption. I won't say what caption, you just have to read it yourself and analyze. So let me just have a look if I can find anyone online. Okay, I'll just reload this page as it's an old version. Let me just check. Okay. So here I am, and I'm just going to wait for some time because it's not 6 o'clock as yet, so I can wait. Okay. I wonder why did I sign in so early? Wow, now look, I can see people and people are just coming in. Okay, so who is this, and where are you signing in from? Are you from Islamabad? Are you from Rawalpindi, or are you from any other area? Do let me know, and I can see the numbers rising as well. So thank you so much for joining in, and do let me know what you think the topic is about. Nothing to talk about. So, what do you think it is about? Okay, Sayyid Abdul Ghaffar. Okay, I'll just mute from this side, and I'm sorry, you'll have to give me 2 minutes. I'll just be back in a jiffy. I'll just quickly be back. But in the meantime, let me see what can I just leave over here so you can just have a look at that till the time I'm back. Is there rotation? Okay. Okay, hello to everyone, and assalamu alaikum and walaikum assalam. I'll just read your messages, but just give me 2 minutes. I just need to get back. Actually, I have to open the door, and it's the bell is ringing continuously, and I don't want it to distract me. Okay, so I'll just be back. I'm sorry. So you'll just have to look at the books in my rack by the time I'm back. Okay. So okay, I'm back, and I'm sorry for that. And unfortunately, जिनके लिए मैं गई थी दरवाज़ा खोलने के लिए, it wasn't him and it was someone else. और यह है कि मैंने भी जो है बगैर पूछे जो है दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड है, बट हस्बैंड नहीं थे. रादर इट वाज सम कोरियर, सम डिलीवरी मैन, एंड ही सेड के भाई यू हैव अ पार्सल. और मैंने जैसे ही गेट खोला, मैंने कहा नहीं नहीं आप तो वो नहीं. एंड आई जस्ट क्विकली पुट द लॉक ऑन अगेन, एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई दिस पार्सल इज़ फॉर समवन. एंड मैंने कहा भाई जहाँ पर भी है ये घर नहीं है, सो यू गो एंड नॉक द डोर और ring the bell on some other person's house. So this is not the one. So that was an awkward situation as well. But it's okay. These things happen. It's normal. Okay. But शुक्र है आजकल जितने वाक़यात हो रहे हैं चोरी और डकैती के, एंड आप बेध्यानी में खोल देते हो. So for that you have to take care of the safety measures.
Okay, so now let's start with our session. What do you think it means? Nothing to talk about. Come on, I'm waiting. Okay, I can see your hellos and I can see so sweet. Okay, thank you so much for giving that comment. And I can see people. Muhammad Fahim, thank you for joining in, and Muhammad Shakil, thank you for joining in this session. Um, I'm fine, Muhammad Shakil. Thank you so much. Okay, so this topic or this session, it's about like आपने अक्सर जो है ना आपको ये चीज़ फेस हुई होगी like मुझे तो बात दफ़ा होती है when you are sitting in a gathering और उस gathering में इतने लोग होते हैं but no one is talking with anyone और उसमें जो है आप ये सोचते हो कि यार क्या है किसी के पास कोई बात नहीं है करने के लिए ये सब इतने खामोश क्यों बैठे हैं. So then, there is one person who has to break that silence. And it can be anyone. Most of the time, yes, it's me. क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकती और मैं जब अपने इर्द गिर्द देखती हूँ कि सब खामोश बैठे हैं और कोई किसी से बात नहीं कर रहा तो आपको जो है यानी आपको अपने एंड पे तो खुद डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो ही जाता है. बट एट द सेम टाइम जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं आपको वो भी लग रहा होता है कि दे वॉन्ट टू से समथिंग एंड दे वॉन्ट टू ब्रेक द साइलेंस और एक बोर्डम सी क्रिएट हो रही है. सो यू जस्ट गेट इन टू दैट मोमेंट एंड यू जस्ट ब्रेक दैट साइलेंस. सो आज मैं आपको जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी कि जब आप खुद इस सिनेरियो में हो और आपको फील हो कि भाई अजीब सी बोरियत हो रही है एंड वी नीड टू गेट इंगेज एंड कम्युनिकेट एंड टॉक टू पीपल हु आर अराउंड अस और with us. And it's not necessary कि आप उस गैदरिंग में लोगों को जानते हो. अगर आप यानी 10 लोगों की गैदरिंग है हो सकता है उसमें आप किसी को भी ना जानते हो या ये भी हो सकता है आप सबको जानते हो या ये भी हो सकता है यू जस्ट नो अ फ्यू बट देन अगेन यू नीड टू गेट इंगेज. अब वो इंगेज करने के लिए क्या तरीक़ेकार है या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आप अपनी कन्वर्सेशन इंगेजिंग कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट टॉकिंग विद पीपल. ओके सो सबसे पहले जो चीज़ है वॉट यू कैन डू इज़ कि भाई आपके साथ जो लोग बैठे होते हैं सबसे पहले तो यानी आप जिस वक्त वो साइलेंस ब्रेक करते हैं आप सलाम दुआ करते हैं या फिर आप जो है डायरेक्टली उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आप किधर से आए हैं. सो यू जस्ट आस्क दैट एंड देन यू गेट इनटू द इंगेजमेंट एंड यू स्टार्ट टॉकिंग. फिर इसके अलावा जो है यानी एक और जो चीज़ आप कर सकते हैं यू कैन आस्क अबाउट देयर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट. क्योंकि हॉबीज़ और इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि एक जो है ना वो फ्लो में चलती जाती है. जब आप लोगों से पूछते हैं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं या आप उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं वो आपसे आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट्स निकल आते हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड strategy भी और it's one of the talking points as well कि you can always discuss about hobbies and interest. और वो तो आप देखेंगे conversation ऐसी जो है चलती है कि वो फिर ख़त्म ही नहीं होती. सो एक ये चीज़ आप कर सकते हैं. अच्छा फिर इसके अलावा आप एक चीज़ क्या कर सकते हैं यू कैन ऑलवेज आस्क अबाउट द रिसेंट एक्सपीरियंसेस. अब एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ के हवाले से हो सकता है. एक्सपीरियंस जो है thank you, Muhammad Shakil. Thank you for your comments. I'm deeply humbled. Thank you. So, एक जो है recent experiences यानी वो किसी भी हवाले से हो सकते हैं. You can always talk about a movie जो कि देखी हो. खैर आजकल तो ज़्यादा ट्रेंड जो है लोगों में मैं देखती हूँ ड्रामों का है तो आप ड्रामों की बात कर सकते हैं. बट अगर मेरे पे हो तो आई वुड नेवर टॉक अबाउट ड्रामास क्योंकि I find them boring and I find them कि they are covered with lies and hypocrisy. So उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको देखकर आप कोई जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो. इट्स मोस्टली इट्स टॉक्सिक और टॉक्सिक इनहेल करने से बेहतर है यू जस्ट क्रिएट योर ओन सब्जेक्ट्स और you talk about positive things. So I would always love to talk about different recipes या different skills जो कि आप सीख रहे हो या आपने सीखी हुई हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है which you are excited about talking about. So ये है कि if you know the person तो वो तो उनके लिए उनके साथ तो आपके लिए बात करना मुश्किल नहीं है बट ये उन लोगों के लिए है जिनका यू डोंट नो अबाउट देम एंड यू वांट टू गेट इनटू अ एंगेजिंग कन्वर्सेशन. सो आप उनसे जो है मूवीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. कौन सी ऐसी मूवी है जो उन्होंने देखी है या लेटली कौन सी मूवी आई है कौन सी इंग्लिश मूवी है जो कि अच्छी आई है जिससे जो है आप कोई लेसन लर्न कर सकती हैं या आपको देखकर अच्छी लगी या कोई ऐसी मूवी थी जो कि आपको हुआ कि भाई ये तो ऐसी मूवी है कि सारी फैमिली बैठ के देख सकती है. वरना तो आमतौर पे
बस इंग्लिश की मूवीज़ ऐसी होती हैं कि फैमिलीज बैठ के नहीं देख सकती। सो आपको पहले जो है अकेले बैठ के उसको जो है एनालाइज करना पड़ता है, अच्छा भी ये ऐसी है कि आप बच्चों को दिखा सकें या बच्चों वाली नहीं है। और अगर बच्चों वाली नहीं होती तो ऑब्वियसली आप फिर वो दैट्स नॉट अ फैमिली मूवी। बट नाउ बहुत सी ऐसी मूवीज़ होती हैं जो कि उसमें जो है देन आपको बच्चों के एज अप्रोप्रिएट देखनी पड़ती हैं। इफ़ इट्स एज अप्रोप्रिएट फिर आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं एंड यू कैन सिट टुगेदर एज अ फैमिली एंड वॉच। और वैसे तो बेस्ट यही होते हैं कि जो फैमिली मूवीज़ हैं जैसे जुरासिक पार्क हो गई या कोई ये हो गई जॉन विक वगैरह की हो गई, विच इज़ यानी ये वो हैं ठाठा वाली मूवीज़ जो कि लड़कों को ज़्यादा शौक होता है देखने का, जिसमें जो है थोड़ा वॉयलेंस इन द सेंस ठाठा गन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह वो गेमिंग करते हैं, गेमिंग में भी उनकी यही ठाई ठाई होती हैं। एनीवेज, पर अगर लड़कियां हों तो दे आर मच मोर कंपोज, और उनके जो है ना ज़रा जो इंटरेस्ट होते हैं टेस्ट होते हैं दैट आर मोर टू वर्ड्स स्टोरी बेस्ड, कि भी इसकी स्टोरी क्या है। सो लड़के लड़कियों के जो है टेस्ट डिफर कर जाता है, बट देन यू हैव टू सी इट अकॉर्डिंगली कि भाई आपके बच्चे बच्ची हैं, फैमिली है, तो आपने उनके साथ किस किस्म की मूवी देखनी है। एंड देन आई गेस फैमिली मूवीज़ में बेस्ट इज़ कि आप कोई बैठ के कॉमेडी मूवी देख लो। और कॉमेडी मूवीज़ भी वो जो बैक इन 90s की थी, अभी लेटली तो मुझे नहीं पता कोई इंग्लिश में कोई अच्छी कॉमेडी मूवी आई हो, बट आई रिमेंबर व्हेन we were young, we used to watch Mrs. Doubtfire a lot, and that was a very good comedy movie, और मज़ा भी आता था। बट देन टीवी पे भी कुछ सीरीज़ आते थे, आई गेस आई डोंट नो उसका क्या नाम था। एक जो है एक मैक्सिकन था, एक अमेरिकन था, पता नहीं, परफेक्ट उसके नाम में कुछ होता था। अब आई डोंट नो उसका पूरा नाम क्या था। खैर दैट वाज a good program to watch with the family. Then Life with Lucy, this was also a good program. But ये वो सारे प्रोग्राम हैं जो मैंने अपने बचपन में देखे हैं। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे मेरे भाई होंगे जो कि who might be 25 or 20 or maybe this age bracket, so you might be Gen Z's, और कोई कोई इक्का दुक्का होगा मेरी एज ब्रैकेट का भी जिनको शायद इन प्रोग्राम्स का पता हो। एनीवेज, हर एक की पसंद होती है, बट दीज आर द थिंग्स जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। आप किसी भी शो को ले सकते हैं, किसी भी मूवी को ले सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट कन्वर्सिंग ऑन देम। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई लोग जिनके साथ आप कन्वर्स कर रहे हैं उनका क्या बेंट ऑफ माइंड है, उनको किस किस्म की मूवीज़ अच्छी लगती हैं। सो यू कैन ऑलवेज डिस्कस दैट। देन आप एक और जो चीज़ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है खाने पीने का। सो खाना पीना तो एक ऐसी चीज़ है कि हर एक को किसी ना किसी अच्छे होटल का या रेस्टोरेंट का पता होगा, या अगर वो ना पता हो तो ये भी पता होगा कि अच्छा जी होम कुक फूड में कौन से फूड्स अच्छे हैं या कौन अच्छे बनाते हैं, और कौन सी रेसिपीज़ अच्छी हैं, या कौन सी जो है ऐसे कोई रेसिपी है जो कि आप आपस में शेयर कर सकते हैं। सो ये एक और चीज़ हो गई, आप रिसेंट एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं। अच्छा फिर देन जैसे आपकी कन्वर्सेशन बढ़ती है तो आप फिर मज़ीद जो है, बट दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, आप उसके साथ भी इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज डिस्कस अबाउट योर फ्यूचर गोल्स या फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं। अब उसमें भी जो है अगेन आपको पता चल जाता है कि किसी और की जो है क्या माइंडसेट है और वो किस तरीके से थिंक करते हैं और उनके गोल्स क्या हैं, और हो सकता है उनके जो गोल्स हैं वो आपके गोल्स के साथ भी जो है कोलैबोरेट करते हैं और आप लोग रेजोनेट कर सकें। और जिस वक्त आप लोग अपने ड्रीम्स या आपके विजन्स होते हैं या गोल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत सी नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपने अपने गोल मेकिंग में जो है इग्नोर कर दी होती हैं, या आपको लगता है कि भाई हर चीज़ कंप्लीट है, बट जब आप किसी और से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें ये कमी है, और फिर आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स एंड गोल्स। अच्छा फिर इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं कि यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट करंट इवेंट्स एंड न्यूज़, जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं। जिस तरह मैं अभी जो है लाहौर एक्सपो गई हुई थी, तो मेरे पास था कि आई कुड टॉक अबाउट चायकॉन या फ्यूचर फेस्ट जो है, या जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, या उधर ही अंदर इसके अलावा जो है एक सिक्योरिटी का उनका जो है स्टॉल था, SCG ग्रुप्स वाले। So that was really fruitful and that was really inspiring, and then I got to meet these talented people who are passionate about the work they are doing. या security है तो security personals को आप किस तरह ट्रेन कर सकते हैं, या अगर आप कोई सोसाइटी में कोई घर चाहे ले रहे हैं तो उसमें हर सोसाइटी में एक जो मेन इशू होता है दैट इज़ द सिक्योरिटी। ना आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, तो मेरी अम्मी जो है शी टुक
a plot in a society which comes under रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी, और उस पर उन्होंने जो है फार्म हाउस टाइप घर भी बनवा लिया, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस आई मस्ट से। यानी अम्मी ने बहुत मेहनत की थी उस घर पे, और प्लान यही था कि इन फ्यूचर वी विल शिफ्ट ओवर देयर, बट देन उधर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ पर बिजली नहीं थी, वहाँ पर गैस नहीं थी। हालांकि इट वाज अ न्यू सोसाइटी, बट ये है कि जो फाउंडिंग फादर्स थे सोसाइटी के, दे नेवर टुक, यानी दे टुक द डेवलपमेंट चार्जेस बट दे नेवर डेवलप दैट सोसाइटी। सो उसका जो नतीजा क्या हुआ कि वो जो घर जो है सोटू से अम्मी ने शिफ्ट किया, सेट किया हुआ था, उसमें 2 दफ़ा चोरी हुई। और जब उसमें चोरी हुई तो मेरे फादर ने कहा कि भाई चूँकि जो है वी आर ए ऑल गर्ल्स हाउस, सो आई कैन नॉट टेक माई डॉटर्स टू दिस एरिया। अब वो चूँकि जो है उसके साथ गाँव भी लगा हुआ था, और ये है कि वो सोसाइटी भी नई नई डेवलप हो रही थी, तो ये है कि देन कुछ आपकी चॉइसेस होती हैं, कुछ आपके डिसीजंस होते हैं विच आर वेरी you have to make very difficult decisions. So that was one of the difficult decision जो मेरे father ने लिया, and he said कि no, we are not going to leave Islamabad and go to a place जहाँ पर security नहीं है, क्योंकि जाहिर है boys हों girls हों, आपने जो है fully protect करना होता है अपनी family को, in terms of their overall protection, इज्जत वगैरह सब सारी चीज़ें ना। तो जिस घर में जो है, जिस खाली घर में लोग चोरी करने से गुरेज नहीं करे, तो उधर लोग अगर आबाद होंगे तो क्या वो गुरेज करेंगे। सो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, सो वो जो पर्सनल की ट्रेनिंग है, और जो SHG ग्रुप वाले हैं, और जिस तरह वो ट्रेन करें अपने पर्सनल्स को, लाइक आई सॉ देयर ट्रेनिंग एंड यू मस्ट लाइक, आई वॉज अमेज्ड कि क्या वाकई में पर्सनल्स इस तरह ट्रेन हो सकते हैं। यानी हमारे यहाँ पर गार्ड जो खड़े होते हैं उनके पास गन्स भी नहीं होती, और अगर चोर आ भी जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो वो उल्टा उन्हीं को मार के चले जाते हैं। पहले उनकी कुटाई होती है, उसके बाद वो घर में किस तरह घुस जाते हैं, और जब वो घर में घुस जाते हैं तो फिर आप ये सोचें कि भाई सामान का तो सफाया होता ही होता है, और जो आप ट्रॉमेटाइज होते हो वो उसके अलावा। सो बट ये है कि ये सिक्योरिटी वाले दीज दे आर रियली गुड पीपल। सो इन कमिंग पॉडकास्ट मैं उनका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करूँगी, एंड you people must join that podcast as well, so it would be in the coming week, but still I'm planning। और जिस दिन मैं पॉडकास्ट करूँगी उस दिन मैं लाइव सेशन ही करूँगी, सो जो लाइव सेशन का टाइम होगा वो पॉडकास्ट में जाएगा। सो ओके, आई जस्ट टेक योर कमेंट्स साथ के साथ। ओके, some demanding skills that an individual should learn. Okay, yes, I will talk about those skills, but that's a totally separate topic. अभी तो मैं ये टॉक आपसे करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अगर किसी गैदरिंग में बैठे हैं एंड यू हैव नथिंग टू टॉक अबाउट, बट देन देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन टॉक अबाउट। सो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर द टॉपिक्स यू कैन टॉक अबाउट while you're sitting in that gathering and you feel कि ओ भाई बोर्डम हिट कर गया, और अब क्या कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से बात करनी है या क्या इंगेजमेंट करनी है। सो अभी मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। गासू रहमान, आई एम फाइन, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अहमद खलील, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड फीडबैक। ओके, सो ये चीज़ होगी। अच्छा, फिर इसके अलावा आप हमने बात कर ली है बुक्स, मूवीज़ एंड TV शोज़ की। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो है टेक्नोलॉजी पे और गैजेट्स पे बात कर सकते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी है, आपको अगर इंटरेस्ट है AIs में, तो आप AIs के हवाले से बात कर सकते हैं। आसिम नुमान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से बात कर सकते हैं, या से आपने कोई गैजेट लिया है तो आप उस गैजेट के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं who are aware of the technologies and they know about different gadgets में आजकल ज़्यादा क्या है, आजकल ड्रोन्स है ज़्यादा, या AIs हैं, या रोबोट्स हैं, so you can always talk about those। यानी मुझे तो बहुत इंस्पायर करता है कि भाई आई शुड बी लर्नड इनफ कि मैं, चलो मैं अगर खुद ना भी हूँ तो आई शुड गेट अ रोबोट मेड जो कि ना बर्तन धो दे। हर घर की परेशानी बर्तन धोना, सुबह से शाम तक एक ही काम है ख़वातीन का, बर्तन धोएं। बर्तनों के अलावा भी वैसे और काम होते हैं, बट येस इट इज़ रियली अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब। आप बर्तन धो रहे हैं, और इस सर्दी में ठंडे पानी के साथ आई गेस अगर कोई बॉट धोएगा तो उसको ठंडा और गर्म नहीं लगेगा, बट आई डोंट नो कि वो पानी में किस तरह हाथ डालेगा, इलेक्ट्रिक्यूट नहीं हो जाएगा। सो then again there has to be some safety measures, maybe gloves, maybe some kind of latex वगैरह, जिससे जो है वो इलेक्ट्रिक्यूट ना हो, बट दैट्स अनदर स्टोरी। सो विल थिंक अबाउट इट कि भाई इसको किस तरह प्लान किया जा सकता है।
ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट कि आपका सिग्नल वीक है. इंशाल्लाह जल्दी रिस्टोर हो जाएगा. वैसे आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, सो जितने लोगों के रिस्टोर हैं वो भी जो है सारे ख़त्म हो जाएंगे. बट ये उससे पहले डाटा पैकेज या किसी किस्म के वायरलेस कनेक्शन ले लेंगे ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो मुनक़ता ना हो सके. आई गेस दैट्स द राइट वर्ड आई यूज्ड, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं मैं उर्दू नहीं यूज़ करती. मैं उर्दू इसलिए नहीं यूज़ करती क्योंकि आई एम शॉर्ट ऑफ उर्दू वोकैबुलरी, और जो मैं वर्ड्स यूज़ करती हूँ मुझे यही होता है कि मैं गलत वर्ड ना अदा कर दूँ. ओके, अच्छा जी, गैजेट्स की भी हमने बात कर ली. अब आप यस रेसिपीज़ भी आप शेयर कर सकती हैं अपने फूड, और जो culinary आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर कर सकती हैं. अगर आपके पास कोई स्किल है या आपको जो है खाना पीना अच्छा लगता है. वैसे हर एक कोई खाना पीना अच्छा लगता है, तो हर एक किसी ना किसी हवाले से जो है ना खाने का कोई ना कोई आइटम डिस्कस कर सकता है. और ख़वातीन तो खैर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें डिस्कस करती हैं कपड़ों जूतों के अलावा. अच्छा, फिर इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप जो है अपनी ट्रैवल स्टोरीज शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ. अगर लोगों को शौक है ट्रैवलिंग करने का या उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में ट्रैवल किया हुआ है, क्योंकि देखें जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी यू आर द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू डू द टॉकिंग. आपने कुछ बोलना होता है, ज़्यादा सुनना होता है, क्योंकि सुनने का जो एक इम्पैक्ट होता है ना वो और ही होता है. अब जिस तरह आप सब लोग अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे ओके नॉट बच्चे, अच्छे फॉलोअर्स की तरह जो है या अच्छे कलीग्स की तरह जो है आप मेरी बातें सुन रही हैं, अच्छे स्टूडेंट्स भी वैसे मैं कह सकती हूँ. तो इसी तरीके से जो है जब आप किसी गैदरिंग में या महफिल में बैठे होते हैं तो वहाँ पर भी लोग जो है आप लोगों की बातें सुनते हैं, वो लोग आपकी बातें सुनते हैं. तो इसी तरीके से जो है ना इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही बंदा जो बोला जा रहा है. एंड यू नो व्हाट आई लाइक दिस स्टाइल, कि भाई मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आपके यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं, एंड यू नो आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू. सो इट्स नॉट जस्ट कि मैं बोली जा रही हूँ. सो आई एम ऑल्सो यू नो hearing you speak, though you are not speaking in the speaking sense, but ये कि मैसेजिंग के थ्रू जो आप स्पीक कर रहे हैं तो आपके कमेंट्स और आपकी जो थॉट्स हैं वो मेरे तक पहुंच रही हैं, एंड आई एम एबल टू यू नो रेजोनेट विद देम एंड रेसिप्रोकेट विद यू पीपल अकॉर्डिंगली. ओके, अच्छा इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, और आप जो है फन फैक्ट्स शेयर कर सकते हैं. फन फैक्ट, सिंपल थिंग्स, ट्रिवियल जो थिंग्स होती हैं, यू कैन इवन शेयर दोज एंड यू कैन इवन टॉक अबाउट दोज. अच्छा, पता है बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग समझते हैं कि भाई ये तो अगर हमने मौसम की बात की तो इट्स वेरी ट्रिवियल. हालांकि हो सकता है कि किसी को मौसम वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करता हो. आप जब मौसम की बात करें तो लोग कहें वाह क्या बात की है, और आपको सराहें. सो ये कि नेवर थिंक कि भाई मैं जो बात करूँगी या मैंने बहुत अगर कॉमन बात कर दी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. नेवर थिंक लाइक दैट. हर एक बंदे का या बंदी का एक अपना स्टाइल होता है और हर एक अपने स्टाइल के मुताबिक बात करता है. आप जो है देखें नॉर्मल वे में जिस तरह लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं या आपस में भी जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, तो इट्स I sound very funny. Okay, thank you so much. That's a compliment. If that's a compliment, thank you. And if you are even criticizing or you're being sarcastic, I'm okay with that as well. So that's my normal, that's my natural style. So I just speak like that. अच्छा, सो नेवर थिंक कि भाई आप कोई भी किसी भी चीज़ पे बात कर रही हैं तो इट्स वेरी trivial, या how people are going to think about you. You should be happy, you should be positive, and you should you know take the comments positively as well. अगर कोई आपको even criticize भी करता है तो then it's for your good. So you know कि okay मैंने next time इस चीज़ का ख्याल रखना है, I'm not supposed to do that. But it's always good to be your true self. You don't have to copy anyone, you don't have to be someone you are not. अगर मैं जो हूँ आज जो है ऐसे किसी की तरह जो है किसी को इमिटेट करती हूँ या किसी तरह बोलने की कोशिश करती हूँ तो इट वोंट बी यू नो लॉन्ग रन, इट वुड ओनली बी शॉर्ट लिव, क्योंकि एक टाइम आएगा व्हेन आई विल रिवर्ट टू माई ट्रू सेल्फ. सो इट्स बेटर यू गो like your true self in the first place rather than imitating anyone. अच्छा ठीक है. अब फन फैक्ट्स में तो खैर आपको पता ही है, फन फैक्ट्स में कोई आपने मज़ाहिया बात कर दी या कोई ऐसी बात कर दी जो कि एक फ़न क्रिएट करते हैं, एक इन्वायरमेंट आपका जो है ना बड़ा लाइवली सा हो जाता है व्हेन देयर इज़ फन फैक्ट्स एंड देयर आर सिंपल थिंग्स टू टॉक अबाउट रादर देन यू कीप ऑन यू नो डिस्कसिंग serious things. And thank you Wasif for joining in.
सो दैट्स हाउ यू गो अबाउट. अच्छा, फिर इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? आप और ये कर सकते हैं कि यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज वेल. देन यू कैन टॉक अबाउट मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन तो मेरा ख्याल है इट्स द नीड ऑफ टाइम. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मोटिवेशन, या इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स विच मोटिवेट पीपल, देन ज़रा एटमोसफेयर थोड़ी सी जो है ना वो हो जाएगी, बाकी में थोड़ी सी बोर्डम हो जाएगी. सो यू नीड टू कीप दिस टच ऑफ engagement जिंदा. So that's how things go. Or personal growth में people can always take your consultation, or they can always ask you कि भाई like this is my career, yeah, I want to do this in life, so how should I go about it? So now there are so many things, so many people, and so many like-minded people, and then there are so many groups जिनको आप join कर सकते हैं. You can come across so many views about different things. सो यू जस्ट सिंपली इन्जॉय दैट. और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, और पर्सनल ग्रोथ आपकी ज़्यादा तब होती है व्हेन यू कम अक्रॉस लाइक माइंडेड पीपल, पीपल हु आर विलिंग टू सी यू सक्सेसफुल रादर देन सीइंग देमसेल्फ सक्सेसफुल. सो जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में जो है अच्छी बातें करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो उन लोगों के साथ आपका ज़्यादा दिल करता है बात करने को. और कोई अगर जो है आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे से लाइक आप किसी के साथ कोई आइडिया शेयर करते हैं कि भाई आई थिंक लाइक दिस, आई फील अबाउट लाइफ लाइक दिस, एंड दे डोंट हैव एनीथिंग गुड टू ऐड, सो दे आर नॉट द पीपल जिनके साथ आपको जो है ना दोबारा कनेक्ट करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज कनेक्ट विद पीपल जो कि आपके ये नहीं कि हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये कि आपको सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपका दिल करता है अच्छा करने को, एंड यू आर इंस्पायर्ड बाय देम. सो इसी तरीके से आप जो है ना पर्सनल आपकी ग्रोथ हो सकती है. एंड देन यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन कि मैंने क्या चीज़ ऐसी डिफरेंट की जिससे जो है ना मेरी यहाँ पर ग्रोथ रुक गई, या मैंने ये चीज़ ऐसी की कि मुझे जो है ये वाली जो है अपॉर्चुनिटी मिली और ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. सो ये जो होती है ना रिफ्लेक्शन, दिस इज़ मोर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आप जो है ना, यानी इट्स नॉट दैट कि आपने एक दिन जो है मुकर्रर कर लेना है और आपने कहना हाँ भी मैंने आज के दिन में जो है ना ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है. ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हर रोज़ रात को जब आप बिस्तर पे सोने के लिए लेटते हैं, मतलब बजाय अपना मोबाइल उठाएं और स्क्रॉल करें कि भाई अब इसको स्क्रॉल करते करते नींद आ जाएगी, वो ना करें. जस्ट क्लोज योर आइज़ और अपना पूरा दिन सोचें कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, क्या चीज़ अच्छी की, क्या चीज़ मेरे मुताबिक नहीं गई, या क्या चीज़ मैं बेहतर कर सकती थी. ये सारी चीज़ें आप सोचें, उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ें और सो जाएं. सो आप ये देखेंगे कि जब आप सोएंगे तो आपकी जितनी नेगेटिव थॉट्स होंगे या जितनी चीज़ें होंगी जो कि आपके माइंड में जो आपको तंग करी होंगी, वो जब आप सोएंगे तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी. सो आपके माइंड में सिर्फ वही चीज़ें रहेंगी जो कि यूटिलिटी आपकी यूटिलिटी के लिए एंड फॉर योर पर्सनल ग्रोथ इज़ गोइंग टू बी गुड. और सारे जो नेगेटिव ख्याल आते हैं वो सारे झड़ जाएंगे. सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर. अच्छा, और इसके अलावा और क्या है मैं देखूं, लेट मी जस्ट चेक कोई पॉइंट रह तो नहीं गया. यस, सो इन द एंड आई वुड से कि भाई आप किसी भी कन्वर्सेशन को नथिंग टू टॉक अबाउट को समथिंग टू टॉक अबाउट या लॉट टू टॉक अबाउट में टर्न कर सकते हैं इफ़ यू हैव द लिस्ट में देखें ना, जस्ट certain things है ना. And you know what, conversation it just comes naturally. If you are good in talking, you just think कि हाँ भाई this is a normal gathering. अगर आप conscious हो जाएंगे ना अपनी gathering से, like अगर मैं जो हूँ ये सोचूंगी कि भाई gathering में जो है ये भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, and they are so scholarly people या they are so educated, और मैं बोलूँगी तो ये मेरा मजाक ना उड़ाएं या ये हंसे नहीं, तो इस तरीके से जो है मेरी जो पर्सनल ग्रोथ है वो रुक जाएगी. अगर मैं जो हूँ इस तरीके से लूँगी कि ओके गैदरिंग में ये जो बैठे हैं, मैं दीज आर पीपल जो कि अपने जो है फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं, एंड आई नो कि आई एम गुड एट दिस थिंग, सो आई विल कैरी माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट. So that is again how you grow and how you reflect, and that is how you portray to the world what you are and how you take the world. और आप जो है अपने व्यूज शेयर करते हैं rather than कि आप किसी और के व्यूज कोट करे हों. कोटिंग इज़ नॉट बैड, दैट इज़ इफ़ यू कोट करेक्टली. अगर आप जो है 100% कोट करेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट टेक आउट द जिस्ट और उसको कोट कर दें. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू मेंटेन योर ओन नेचुरल स्टाइल.
और वो नेचुरल स्टाइल चाहे किसी को फ़नी लगे या किसी को अच्छा लगे या किसी को क्यूट लगे, इट ऑलवेज वर्क. सो फ़ाहद अहमद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. ओके, यू नो व्हाट, जब मैं इस तरह करती हूँ तो मुझे लगता है जो मैंने फ़िल्टर किया हुआ है ना वो नज़र आता है. सो ये फ़िल्टर लगाने का पता फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मेरे चीक्स पे जो नज़र आ रहा है ना ब्लश ऑन, वो मुझे खुद नहीं अप्लाई करना पड़ता. क्योंकि अगर मैं मेकअप ज़्यादा अप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ वैसे मैं मेकअप ज़्यादा नहीं अप्लाई करती, मैं सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाती हूँ. ये मुझे जो है ना चीक्स पे भी करना पड़ना है और फिर बाद में बैठ के मुझे मेकअप उतारना पड़ना है. एंड आई डोंट वांट कि मेरी स्किन ख़राब हो ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करके. सो आई जस्ट ट्राई टू कीप इट ट्रिवियल. इट वर्क्स फॉर मी एंड दीज फिल्टर्स वर्क फाइन. इसमें तो माशाल्लाह से बहुत ही कोई खूबसूरत ही फीचर्स नज़र आते हैं. जितने अल्लाह ने बनाया है उससे भी ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं. सो आई जस्ट लाइक दिस फिल्टर. ओके, सो लेट मी जस्ट सी अगर मैं आप में से किसी को ऑन कैमरा ले सकती हूँ. एंड और यह है कि जब मैं कैमरे पे लूँ, मेहरबानी करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा. मैं आप लोगों को कुछ नहीं खाऊंगी, मैं जस्ट आपके जो है ओपिनियन लेना चाहती हूँ या देखना चाहती हूँ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के लिए. ओके, मैं आपको नहीं ऐड कर सकती. चौधरी फ़हीम, लेट्स सी. राना वकास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. मोहम्मद सफ़ी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. ओके, लेट मी सी और कौन है जिनको मैं कैमरे पे ले सकती हूँ. जस्ट लेट मी चेक आउट. मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि रोटेट ना हो. और आई जस्ट थिंक मैं किसी को जो है ना कैमरे पे नहीं ले सकती. बट इंशाल्लाह आई विल कम अगेन टुमारो एंड आई विल डिस्कस समथिंग न्यू. और यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपने पूछा मेरे से, तो इंशाल्लाह कल का टॉपिक हम उस पर डिस्कस करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट दैट. सो टिल देन, टिल टुमारो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. दवाओं में याद रखिएगा. कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो apologies for that. Didn't do anything intentionally, unconsciously maybe. But ये है कि thank you for joining in. So see you tomorrow. Bye bye and take care.